investors start strong, but over time, portfolios often begin to tilt towards one familiar asset class. And when market cycles change, that lack of diversification becomes harder to ignore. Building a thoughtful asset mix takes more than intent. It takes structure. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the Diversification Playbook, we are exploring the real challenge of diversification and how to overcome it. Joining us is Mr. Mayank Rastogi of Total Services Sri Kalindi, who has been associated with the financial services industry for nearly 27 years, including over 18 years in the mutual fund space. Through his work across mutual funds, equities, bonds, and lending products, Mr. Rastogi has helped investors across different life stages make more informed financial decisions. In this conversation, he talks about why portfolios drift, what real diversification looks like across asset classes, and how multi-asset strategies can help reduce emotional decision-making, especially for those looking for long-term simplicity. Let's begin. Mayank, welcome to Grow AMC. Thank you so much. Thank you for inviting me. तो टू बिगिन विद कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो राइट इंटेंट के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं, बट विथ टाइम उनका जो पोर्टफोलियो है वो एक ही एसेट क्लास की तरफ हेवी टिल्टेड होने लगता है. ये ड्रिफ्ट क्यों होता है? व्हाट कॉजेस? This is a nice question which you have put in. Everybody, we know the adage from our very childhood. We all learn that we should diversify our portfolio. We should not keep all our eggs in one basket. But in practicality, this is a bit difficult to do. Why? Generally, all asset classes, they move in different directions. When he begins his financial journey, so he has the right intentions. Yes, I'll put this much in debt, this much in equity, this much in gold. But over a period of time, as usually happens in market cycles, some of the asset class will go up or some will underperform. So investor behaves in a herd mentality. He sees all the news about it. He sees people from his peer group going towards that asset class. So he just goes only overboard on one asset class, which should not be the case. And the whole purpose of diversification is lost. Okay. तो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग एसेट क्लासेस को मिक्स करना. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट दिस इज व्हाट ट्रू डाइवर्सिफिकेशन इज? एंड ये नहीं कि सिर्फ हम ज्यादा एक ही प्रोडक्ट को ऐड किए जा रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. ये आपका बिल्कुल ठीक कहना है. इवेंचुअली जब पीपल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कभी कभी क्या सोचते हैं कि एडिंग मोर ऑफ द सेम, दैट इज टू डाइवर्सिफिकेशन. कोई नया फंड ऑफर हो गया, कोई नई चीज आ गई. इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, उसका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो. एक ज्यादातर कोशिश उसकी होनी चाहिए कि अलग अलग एसेट क्लास में हो. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि उसका किसी की एसेट क्लास में ओवरबोर्ड हो रहा है और ओवरलैपिंग भी हो रही है. सेम, मोर ऑफ द सेम रादर देन ही इज गेटिंग ट्रू डाइवर्सिफिकेशन. अगर उसने कोई भी प्री डिटर्मिन्ड मिक्स बनाया है, ओके, सपोजिंग आई वांट 1/3 in equity, 1/3 in debt, 1/3 in bonds, तो द ट्रिक इज दैट ही शुड मेंटेन दैट रादर देन ट्राइंग कि किसी एक में ही चलते चले जा रहे हैं. बट दैट the only problem is then one has to be disciplined and stick to the asset classes which he has thought of. Right. तो ऐसा क्यों होता है जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं? तो what kind of behavior is it which makes investors a little apprehensive or they doubt diversification even though उनका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म का है? बट मार्केट वॉलेटिलिटी में किस तरह का बिहेवियर होता है जिससे कि आप डाइवर्सिफिकेशन को डाउट करने लगते हैं? देखिए, ये बहुत, इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. Eventually, there is one thing which is called intelligence quotient. When he is starting the journey, he starts with that intelligence quotient कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, we should do this. उसने बहुत सारी रिसर्च करी होगी, पढ़ेगा, अपने एडवाइजर से बात करेगा, सब चीज़ करेगा. पर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है ना, जब वंस आप यू स्टार्ट दैट जर्नी, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे एकदम से यू फील कि सम एसेट क्लासेस डूइंग वेल, जैसे हमने पहले आपसे कहा. सेकेंडली क्या हुआ, देयर इज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड बेरिश फेज. तो व्हाट हैपेंस कि जब इन्वेस्टर ये वॉलेटिल देखता है या अंडर परफॉर्मेंस बहुत लंबे पीरियड का देखता है, तो इट इज वेरी नेचुरल. वो होता क्या है कि ये सेट बेकार है, हमने डाइवर्सिफाई करा, वो कुछ नहीं, ये तो अब होना ही नहीं है, अब ये तो कभी इक्विटी का टाइम आएगा ही नहीं. या कभी कभी गोल्ड का सिनेरियो आया तो फिर उसको लगता है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, सब कुछ गोल्ड में होना चाहिए, जैसे आजकल हो रहा है. वी आर प्रीडोमिनेंट, ऑब्वियसली इक्विटी हैज अ प्लेस, डेट हैज अ प्लेस, एवरीथिंग हैज अ प्लेस, बट यू हैव टू स्टिक टू इट. इसमें ये नहीं करना कि हमें अपने डिसिप्लिन के एसेट एलोकेशन को, जो भी हमारी रिस्क प्रोफाइल है, जो भी हमारा गोल्स है, उनसे हमें डिविएट नहीं करना. दैट इज अ चैलेंज. और वहां पे एडवाइजर्स का, सबका हेल्प चाहिए होती है, जो उनको
समझाते हैं, बताते हैं उनके एसेट्स को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है, कैसे रखना चाहिए, एंड टू स्टे डिसिप्लिन एंड राइट दिस वॉलेटिलिटी आउट एंड सो दैट दे कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस। जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है जो टिपिकली इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन के बारे में डाउटफुल बना देता है, इवन दो उन्होंने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की होती है, बट मार्केट वॉलेटिलिटी में क्या होता है, किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है? मार्केट वॉलेटिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि इन्वेस्टर को अनर्व कर देता है। हाउ डज इट अनर्व? बिकॉज किसी न किसी समय उसको देखता है कि कोई एसेट क्लास या तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो उसका एसेट क्लास जिसमें उसका सब्सटैंशियल स्टेक है और वो एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन दैट उसमें क्या होता है, वो अनरिसी परेशान होता है। तो वो कभी कभी वो क्या करता है, वो एग्जिट करने की कोशिश करता है, विच इज टोटली रॉन्ग एट दैट टाइम। आप एग्जिट कर रहे हैं जिससे मैं अंडर परफॉर्म कर रहा है, rather than adding positions to it, he is actually moving out from that asset class and going to valued asset class. ये human tendency होती है, but only those investors have made money who have stuck to it. उस volatility को वो ride कर सके. They did not move from one asset class to another asset class, not trying to chase returns, the latest trends, the latest momentum factors and everything. So to make money, you have to be disciplined. And that is where your financial guide, he helps you out to stay put through that journey. He helps you out to ride that volatility so that you get your desired output, you are meeting your goals and you have a better experience. तो एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन खुद मैनेज करना, इक्विटी, डेट, गोल्ड, अक्रॉस ऑल ऑफ दैट, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली, क्योंकि वो अपने ही लाइफ से तंग है, इतनी चीजें, अपनी चीजों को समझना करना, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग हिज ओन जर्नी, बिकॉज ही हैज डिफरेंट बिजनेस इंटरेस्ट और सर्विस और ही इज डूइंग प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन वर्क। आपको अगर इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इज वाइड बास्केट, उसको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझ पाना, कौन से एसेट क्लास कौन सी साइकिल में है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, कब वहां से उसको मूव कर जाना चाहिए, कब रीबैलेंस कर सकना चाहिए, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज का इंटरेस्ट सिनेरियो क्या रेट का है, वो रेट कट का क्या इम्पैक्ट होगा, फिर डॉलर टर्म्स में क्या, मतलब दीज आर सो कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर अ लर्नड पर्सन जिसको वो ग्रास्प कर सके। तो एक एवरेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर को हम सोचें कि वो ही विल बी एबल टू ड्राइव ऑल दीज थिंग्स, वो उसके जार्गन्स और पागल हो जाएगा, वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू इट। सो इट इज ऑलवेज बेटर हैव अ डिसिप्लिन, मिक्स योर राइट एसेट क्लासेस जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल है, एंड जस्ट राइट दैट वॉलेटिलिटी। तो इन दैट लाइट एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या रोल प्ले कर सकता है उनके लिए जो डिसिप्लिन भी रहना चाहते हैं एंड शॉर्ट टर्म मूव्स पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते? I think asset allocation fund, it is a vehicle for especially for a first time investor, because he is getting the right mix of almost all asset classes. He is getting bonds, he is getting equities, he is getting gold. Since all these asset classes move in different directions, तो उसमें क्या होता है कि volatility, inherent volatility of that portfolio is also reduced. It helps him to stay disciplined. Again, there are many multi-asset funds. उसमें एवरी एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करता है। वो ये मल्टी एसेट फंड्स में क्या होता है, 60-65% इक्विटी होता है, 30-35% डेट एंड गोल्ड में हो जाता है। कुछ मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जो कि प्री डिटर्मिनेट रखते हैं कि 1/3 रख सकते हैं। कुछ लोग एक्टिव पोर्टफोलियो बैलेंस करते हैं, कुछ लोग स्टिक करते हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जितने भी मल्टी एसेट फंड्स हैं, जो भी कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल है, जो भी उसका whatever his objectives are, he has to align his objectives, his goals with that multi asset fund. The main thing is that what he has started off, discipline, that should be maintained. He should get in touch with some good advisors who will help him to ride out of that volatility so that he can reach his goals comfortably. Great. Thank you so much, Mayank, for talking to us in detail about why diversification is important and how to go about. Thank you. Thank you so much. As Mr. Mayank Rastogi explained, diversification is not just about adding more. It's about combining asset classes that behave differently, especially in uncertain times. Equity, debt, and gold each play a role. And when used together with purpose, they can help reduce emotional decisions and portfolio drift. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in.
The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. It aims to provide a structured framework for diversification without asking the investor to manage each piece separately. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because when structure takes care of the strategy, it becomes easier to focus on the bigger picture. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.